ہاں جی، تو ہم تھے آیت نمبر 143 پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ قبلہ تمہارا بدل گیا، تم امت وسط بن گئے، اور اب تمہارا مین ٹاسک، مین مقصد ہے کیا؟ تم نے کرنا کیا ہے؟ فریضہ منصب دیا، تو ساتھ ہی فریضہ منصبی بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی لوگوں کے اعتراضات بھی بتائے جا رہے ہیں. اب آگے دیکھیے آگے کیا ہے. اچھا، یہ جو گواہی دینی ہے، یہ دینی کیسے ہے؟ اس گواہی دینے کا مطلب ہے اپنی زبان اور عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دینا ہے کہ سچا دین کون سا ہے، اور یہ دنیا میں یہ گواہی ہوگی ہماری، اور آخرت کے دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ہم سے پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ پیغام لوگوں کو، دنیا کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ آیت آگے کنٹینیو ہو رہی ہے. اور جس قبلے پر تم تھے، ہم نے اس کو صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم الگ کر دیں ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں. اور جس قبلے پر تھے تم، ہم نے اس کو صرف اس لیے ٹھہرایا تھا کہ ہم الگ کر دیں ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں سے جو پیٹھ پیچھے پھر جانے والے ہیں. مطلب کہ یہ جو عارضی قبلہ تھا، یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ عارضی قبلہ تھا، 13 سال تک وہ قبلہ رہنا تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تبدیلی نہیں کی مکہ میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ مشرکین کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ تم سے فرق ہے، وہ تمہاری طرح عبادات وغیرہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا قبلہ بیت المقدس ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے تھے، اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ آپ کے سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور ساتھ ہی بیت المقدس کی بھی سمت ہوتی تھی، یعنی سامنے دونوں، کعبہ بھی سامنے آ جاتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ عارضی ہی تھا. وہ کیوں تھا عارضی؟ کیوں؟ اور اب یہ قبلہ کیوں تبدیل کر دی گئی؟ یہاں پہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم الگ کر دیں، چھانٹی ہو جائے. یہ ٹیسٹ تھا تم لوگوں کا. ٹیسٹ کیا تھا؟ کہ کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے، مخلص اور منافق جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں. رسول کی اتباع، رسول کی پیروکاری اب کون کرے گا؟ سمعنا و اطعنا، سنتے ہی کون بات مانے گا؟ مسئلہ تو جی ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، یہ میں نے ایسے ہی کیوں کرنا ہے، دیر سے ماننا، یہ تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں. بیسکلی ٹیسٹ ہے کہ سنتے ہی، اتنا سنسیئر، اتنا مخلص کون ہے کہ سنتے ہی عمل کر دے گا. اور ایسا کون ہے جو کہ بیسکلی روایات کا تابع ہے، جو کہ موقع پرست ہے، جو کہ اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہے، جس کو یہ بڑی مشکل لگ رہی ہیں یہ چیزیں. آگے دیکھیے. اور بے شک یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ ہدایت نصیب کرے. جو ہدایت والے ہیں نا، ان کے لیے آسان ہوگا اس پر عمل کرنا، اور جنہوں نے اصل میں ہدایت نہیں پائی نا، ان کے لیے اس بات پر عمل کرنا، اس کو ایبزارب کرنا، اس کے مطابق چلنا بڑا مشکل ہے. اچھا، مشکل کیوں تھا؟ کیونکہ ابھی تک یہ جو ایبریگیشن کا کانسیپٹ ہے نا، نسخ ہونے کا، ایک حکم ختم ہونے کا، ہمیں اب اتنا عجیب نہیں لگتا، کیونکہ ہم نسخ اور منسوخ کا قاعدہ بھی آلموسٹ ہم میں سے زیادہ تر لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ پہلا حکم تھا جو کہ مدینہ جا کے نسخ کیا جا رہا تھا، اور اس کی جگہ پہ ایک چینج کر کے نیا حکم دیا جا رہا تھا. جی بیٹے، اس کو چارجنگ پہ لگا دینا. اچھا ٹھیک ہے، میں لگا دیتی ہوں، آپ رکھ دیں. ہاں جی. تو بیسکلی جو ہدایت پر تھے ان لوگوں کے لیے آسان ہوگا اس کو فالو کرنا، باقی لوگوں کے لیے مشکل ہوگا. اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنا چاہے. اللہ تو لوگوں کے ساتھ بڑا مہربان اور رحیم ہے. مطلب پھر لوگوں نے، مسلمانوں نے سوال پوچھنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ جو مسلمان وفات پا گئے، وہ تو نماز دوسری طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، قبلہ ان کا دوسرا تھا، تو اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ حصہ نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئی. نماز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکویٹ کیا ایمان کے ساتھ، کہ نماز ہے ہی بیسکلی ایمان. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تو فیض ہی فیض دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ جی میں پہلے سزا دوں. سورۃ النساء کے اینڈ میں آتا ہے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں سزا دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو تم پر رحم کرے گا. اللہ کا رحم اللہ کے غضب پر حاوی ہے. تو اور یہاں سے ہمیں نماز کا سٹیٹس، نماز کی امپورٹنس کا بھی پتہ چل رہا ہے. نماز کی امپورٹنس پر خصوصاً وہ علماء فقہا جو کہ کہتے ہیں کہ نماز ضائع ہونے سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے یا کافر تک ہو جاتا ہے نماز کو چھوڑنے پر، وہ سارے علماء اس آیت کو بیسس بناتے ہیں کہ نماز کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا. مطلب کہ نماز ہی تو ایمان ہے، نماز ہی تو ایمان کی نشانی ہے. جس میں نماز نہیں اس میں ایمان ہی نہیں. تو یہ نماز ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. بہت زیادہ دفعہ ہم نے نماز کی اہمیت کے اوپر بات کی ہے. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 144.
اللہ ताला फरमाते हैं कि हम आसमान की तरफ तुम्हारे रुख की गर्दिश देखते हैं, सो हमने फैसला कर लिया कि हम तुम्हें इस किबले की तरफ फेर दें जिसको तुम पसंद करते हो। अल्लाह ताला ऑलरेडी इसका फैसला कर चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि जो किबला है वो अब बदल जाए। क्यों? क्योंकि यहूद ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया था, मुसलमानों की मुखालफत शुरू कर दी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस मिलती हैं जिसमें आपने फरमाया कि इनकी मुमासलत ना इख्तियार की जाए, इनसे तुम लोग अलग दिखो। अगर ये जूते उतार के इबादत करते हैं, तुम जूते पहन के इबादत करो। अगर ये लोग इस तरफ को बाल सेट करते हैं, तुम लोग दूसरे तरफ को बाल सेट करो। इस तरह बहुत सारी चीजें थी जिनमें कि बेसिकली इनके अगेंस्ट जाने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे और रातों को चेहरा ऊपर करके अल्लाह ताला से दुआ मांगा करते थे। तो अल्लाह ताला वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि और हमने आपकी पसंद के मुताबिक इसको बदल दिया। इससे हमें क्या पता चल रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत अल्लाह ताला की नज़र में, आप सल्लम से मोहब्बत कितनी ज़्यादा है अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये फैसला तो था, ये तो होना ही था, ये पहले से तय था, लेकिन सिंस आप सल्लम की मोहब्बत, आपकी डिज़ायर, आपकी ख्वाहिश भी यही है, इस वजह से अल्लाह ताला ने इसको कर दिया। तो तुम अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करो, ठीक है, आप सल्लम से कहा जा रहा है। और जहां कहीं भी तुम हो तो अपने रुख इसी की तरफ करो। जिन लोगों को किताब मिली वो जानते हैं कि यही उनके रब की जानिब से हक है, और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह इससे बेखबर नहीं है। किनको किताब मिली? अहले किताब की बात हो रही है, बनी इसराइल की, यहूद और नसारा। ये लोग जानते थे अपनी किताबों के जरिए से कि जो आखिरी रसूल आएगा वो बनी इस्माइल से होगा, और इन्हें पता था कि बनी इस्माइल ज़ुर्रियत इब्राहिम और ज़ुर्रियत इस्माइल का जो किबला था वो क्या था? काबा ही था। तो उन्हें इस सब का आइडिया था कि जो आखिरी रसूल होंगे उनका किबला काबा ही होगा। लेकिन इसको भी इन्होंने क्या किया था? अपनी किताबों में तहरीफ कर दी थी, चेंजेस कर चुके थे। ये इसकी तफसीर में लिखा हुआ है, इस आयत की तफसीर में, और चेंजेस कर चुके थे। इस वजह से इन्होंने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह इससे बेखबर नहीं है कि जो तुमने किया। अगली आयत 145, और अगर तुम अहले किताब के सामने हर किस्म की निशानियां भी पेश कर दो तो भी ये तुम्हारे किबले की पैरवी नहीं करेंगे। आप सल्लम से कहा जा रहा है कि ये नहीं मानेंगे। अहले किताब को अब जो मर्जी मोजज़ात दिखा दें, आयात दिखा दें, आप इन्हीं की स्टोरीज इनको सुना दें, जो सूरत बकरा सब पूरी की पूरी ये 1.5 साल में नाजिल हुई है सूरत बकरा, उसमें कितने ज्यादा वाकयात है बनी इसराइल के, इन्हीं के वाकयात, इन्हीं की हिस्ट्री इनको बता दें, किसी बात से ये नहीं मानेंगे, या आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। और ना आप इनके किबले की पैरवी करने वाले बन सकते हैं, और ना वो एक दूसरे के किबले की पैरवी करने वाले बन सकते हैं। मतलब बनी इसराइल में खुद ही इख्तलाफ था, ऑलरेडी मैंने बता दिया। जो नसारा थे वो मशरिक की तरफ, बैतुल मक़दिस की मशरिकी दीवार की तरफ इबादत करते थे, और ये लोग मगरिबी दीवार की तरफ, यहूद जो थे। और अगर तुम इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है इनके ख्वाहिशों की पैरवी करोगे तो बिला शुबा तुम जालिमों में से हो जाओगे। मतलब कि अब हक तो आ गया, इल्म तो आ गया, तो किबला की तब्दीली हो गई, अब इसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी किबले की तब्दीली को फॉलो नहीं करता, बल्कि यहूद नसारा की बात सुनता है या किसी भी और की बात सुनता है या अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करता है, तो इन्हीं जालिमों की तरह हो जाओगे, यानी ये जो यहूद नसारा जालिम है इनकी तरह हो जाओगे। 146 आयत, जिनको हमने किताब इनायत की है वो उसको पहचानते हैं जैसा कि अपने बेटों को पहचानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले किताब ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। और हम अपने बच्चे को कैसे पहचानते हैं कि आंखें बंद भी करें ना, बहुत दूर से मजमे में भी रोने की आवाज आए ना, तो मुझे पता है ये मेरा बच्चा रो रहा है। आंखें बंद भी हो ना, मुझे पता है कि मेरा बेटा ये वाला है, ठीक है। ऐसे हम इस तरीके से अपने बच्चों को पहचानते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये ऐसे पहचानते थे अपने बच्चों को, अपने आप सल्लम को, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। फिर भी इन्होंने क्या किया? इनकार किया। यानी इनके इनकार की वजह क्या थी? इनके इनकार की वजह सिर्फ और सिर्फ इनकी जिद, इनकी मुखालफत और इनका हसद था कि ये बनी इस्माइल में क्यों, ये हमारी नस्ल से क्यों नहीं। अलबत्ता इनमें एक गिरोह वो है जो जानते बूझते हक को छुपाता है। इनके जो उलमा थे उनकी तरफ इशारा है कि वो गिरोह इनमें था जिसने के हक को छुपा दिया, पता था लेकिन छुपा दिया। आयत नंबर 147, यही हक है तुम्हारे रब की जानिब से। क्या हक है? ये किबले की तब्दीली की यहाँ पर बात हो रही है। तो तुम शक करने वालों में से ना बन जाना। शक करने वालों का क्या मतलब है? यानी कि इस बात से परेशान मत होइएगा, कोई भी मुसलमान इस बात से परेशान ना हो कि जी अगर हक ये है तो यहूद नसारा क्यों नहीं फॉलो करते। इन्हें तो पता था, इनके पास भी तो किताबें थी अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसकी परेशानी कोई ना ले, इनकी बेसिकली जिद है।
आयत नंबर 148, हर एक के लिए एक सिमत है और वो उसी की तरफ रुख करने वाला है, तो तुम नेकियों की राह में सबकत करो। फस्तबिकुल खैरात, मतलब ज़ाहिरी रुख तुम्हारा बदल गया है तो तुम्हारे बातिन का रुख भी बदल जाना चाहिए तुम्हारी। और असल क्या है 177 आयत में जब हम जाते हैं ना, आयतुल बिर में, कभी इंशाल्लाह उसको भी पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली नेकी की आयत है, नेकी की को डिफाइन करने वाली जो आयत है, उसके शुरू में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि किबले की तब्दीली हुई है, लेकिन असल नेकी, आगे नेकियों की पूरी लिस्ट है जो कि नेक काम है करने वाले, बातनी नेकियां, वो सब असल नेकियां तो ये हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिमत तो है तुम्हारे लिए, पक्की कर दी, तुम्हारे लिए रख दी गई, लेकिन तुम्हारा फोकस सारा का सारा नेकियों पर होना चाहिए। तुम इस बात पे ना ध्यान दो कि जी किबला की तब्दीली हो गई, ये क्या हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे हुआ क्यों, वो एतराज कर रहा, अब हम क्या जवाब दें, वगैरह वगैरह। इन सब बातों को इग्नोर करके जो कह दिया गया वो करो, और फोकस सारा का सारा अपना शिफ्ट करो नेकियों की तरफ, नेकियों में सबकत करने की तरफ तुम उसमें आगे बढ़ो, उसमें मुकाबला करो। ठीक है, जब हम आगे जाके हज की आयत पढ़ते हैं ना सूरह अल बकरा में, उसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज की तैयारी तुम कर लो, और अल्लाह ताला कहते हैं कि बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है, कि तुम सारी ज़ाहिरी तैयारी तो करोगे, लेकिन बातिनी तैयारी असल में तुम्हारी तकवा है। तकवा को मत भूल जाना, जो गुनाहों से बचने की जो तैयारी है ना, जो नियत है नेकियों में बढ़ने की, जो गुनाहों से बचता है वही नेकियों में बढ़ता है, सही। तो वो तकवा को ना अपना ज़ादिरा भूल जाना। इसी तरह सूरत अल आराफ में जब हम पढ़ते हैं ना, लिबास की जो आयत होती है, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने लिबास नाजिल किया, लिबास से रिलेटेड आयत आती हैं, उसमें अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं बेहतरीन लिबास तुम्हारा तकवा है। यानी ज़ाहिरी लिबास ठीक है, तुम्हें ज़ाहिरी लिबास मैंने नाजिल किया खसूसन तुम्हारे लिए, ये तोहफतन अल्लाह ने हमें लिबास दिया, लिबास के बहुत सारे बेनिफिट्स, लेकिन बेहतरीन लिबास तुम्हारा फिर भी तकवा है। यानी हर चीज में जो ज़ाहिरी हुक्म हम फॉलो कर रहे होते हैं ना, उसके बातिन में बेसिकली नेकियों में आगे बढ़ जाना, तकवा इख्तियार करना, गुनाहों से बचना, ये होना चाहिए। सारा मेन फोकस हमारा तकवा पे होना चाहिए। जहां कहीं भी तुम होगे, अल्लाह तुम सबको जमा करेगा, अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। मतलब तुम जहाँ कहीं भी अब हो, तो अब तुम्हारा किबला तुम्हारी सेमत काबा की तरफ होनी चाहिए, और अल्लाह तुम सबको इस पर जमा कर देगा। और जहाँ कहीं से भी तुम निकलो तो अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ ही करो, बेशक यही हक है तुम्हारे रब की जानिब से, यही सच है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। अब आप ये देखेंगे कितनी दफा रिपीट हो रहा है ताकीद के लिए कि अपना रुख किबले की तरफ कर लो, काबे की तरफ कर लो, अपना रुख काबे की तरफ कर लो। दोबारा आगे आ रहा है देखिए 150 में। और जहां कहीं से भी निकलो तुम अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ कर लो। एक तरफ सिंगुलर में बात हो रही है, आपसे सलम को कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ फिर डायरेक्टली प्लूरल में बात हो रही है, जो कि फिर तमाम मुसलमानों को कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन वही बात बार बार रिपीट करके ताकीद की वजह से कही जा रही है। अब इस आयत में इसकी 3 हिकमतें भी बताई जा रही हैं कि ये क्यों किया गया। और जहां कहीं भी तुम हो, तुम अपने रुख को इसी की जानिब करो, ताकि लोगों के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत बाकी ना रहे। पहली हिकमत ये दी जा रही है कि लोगों के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्सक्यूज, कोई बहाना ना वो बना सके। यानी ये जो प्रोपेगेंडा, कोई साजिशें अब चलेंगे ना ये तुम्हारे खिलाफ, तो इसमें इसकी अब तुमने फिक्र नहीं करनी। ये जो प्रोपेगेंडा करेंगे ना, ये सारा का सारा झूठा है, इनकी हुज्जतें सारी गलत होंगी, इनके पास कोई हुज्जत बची ही नहीं है। इन्हें पता था कि ज़ुर्रियत इस्माइल जो है उसका किबला ये काबा ही होगा। तो अब अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ये अपनी किताबों के खिलाफ जा रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ इनके पास अब कोई हिज्जत नहीं है। मगर जो इनमें से जालिम हैं, मतलब कि जो इनमें से जालिम है, वो क्या करेंगे, वो फिर भी हुज्जतें निकालते रहेंगे। तो इनसे ना डरो, सिर्फ मुझसे डरो, यानी लोगों से मत डरो। यहाँ तो यहूदियों की बात हो रही है कि यहूदियों से मत डरो और सिर्फ अल्लाह से डरो। वैसे नॉर्मली भी हमें इतना हिस्सा तो इस आयत का याद होना चाहिए, फला तख्शौहम वख्शौनी, तो ना डरो तुम उनसे बल्कि मुझसे डरो। तो जब भी हमें दीन के किसी भी हुक्म पे अमल करते हुए प्रॉब्लम हो रही होती है, हम फंस रहे होते हैं, हमने उसमें क्या सोचना है, लोगों से नहीं डरना, लोगों की फिक्र नहीं करनी। फिक्र किसकी करनी है, अल्लाह की फिक्र करनी है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरना है। अल्लाह ताला के अहकामात पर नजर होगी और अल्लाह की सजा और जजा पे नजर होगी। और ताकि नंबर 2 यहाँ पर हिकमत क्या है, ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दूं, नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी जाए। मतलब कि ये आखिरी दिन है ना, आखिरी दिन मतलब ये आखिरी उम्मत है जिसको ये मुकम्मल दीन बेसिकली दिया जा रहा है। दीन तो वही है जो कि शुरू से नजर चलता आ रहा है हज़रत आदम के ज़माने से। तो ये आखिरी रसूल आए हैं जो कि अल्टीमेटली फाइनल पैगाम अब डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ पर ये मुकम्मल किया जा रहा है। तो ये जो किबले की तब्दीली है ना, ये भी आखिरी नेमत है, इसके बाद किबले की तब्दीली नहीं होगी, हो
ही नहीं सकती, रसूल तो आखिरी आगे आखिरी, अब सारा कुछ मुकम्मल होने लगा है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। और हजरत उमर के ज़माने में एक यहूदी आपको मिला और हजरत उमर से कहा कि ये एक आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये एक आयत जो सूरह माइदा की है, ये अगर मुझे मिलती ना, हमें मिलती, हम यहूदियों को मिलती, तो हम उस दिन को ईद के दिन की तरह मनाते। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आयत है, अल्लाह ने फजीलत दे दी ना इस आयत के ज़रिए। और यहाँ पे भी जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया, अल्लाह ने फजीलत दे दी इस उम्मत को, उम्मत वस्त कह के भी और ये कह के भी कि तुम पे ये नेमत मुकम्मल हुई है। अब इसके बाद ये नेमत किसी को नहीं मिलनी, किसी और का हिस्सा नहीं है इस नेमत में, ना इससे पहले था ना अब इसके बाद कोई है। तो हम इन आयात को वैल्यू नहीं करते और हम ये नहीं समझते कि हमें इन आयात को सेलिब्रेट करना चाहिए। तीसरा अल्लाह ताला हिकमत क्या बता रहे हैं किबले की तब्दीली क्यों की, और ताकि तुम सीधा रास्ता पा जाओ, तुम राहयाब हो जाओ, ठीक है, ताकि तुम सीधे रास्ते पर चलो। अल्लाह वो सिराते मुस्तकीम की जो रहनुमाई हमें चाहिए, वो रास्ता जो कि अल्टीमेटली हमें जन्नत की तरफ लेकर जाएगा, वो रास्ता जिसके ऊपर नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है, वो तुम्हें मिल जाए। इस इन तीनों हिकमतों के लिए अल्लाह ताला ने किबले का तहवील किबला जो है वो यहाँ पर अल्टीमेटली अंजाम पाया। और ये हुआ कब था, ये 2nd हिजरी में स्टार्ट में हुआ था, गज़वा बदर से पहले। कुछ कहते हैं कि रजब या शाबान, रजब 2 हिजरी या शाबान 2 हिजरी में ये बेसिकली मामला हुआ था। आगे देखिए आयत नंबर 151। अब इसमें 4 जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनको बेसिकली हमने भी उठाकर चलना है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे देखा आयत नंबर 143 में कि फरीज़ा मनसबी जो आप सल्लम को दिया गया था, अल्टीमेटली उसको हमने भी आगे बढ़ाना है, लोगों तक पैगाम पहुंचाना है। उसको करना कैसे है, पैगाम कैसे पहुंचाना है, उसके लिए 4 स्टेप्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। चुनाचे हमने तुम में एक रसूल भेजा, तुम ही में से, यानी आखिरी रसूल भी भेज दिया। और यहाँ पे सारी फाइनल बातें बताई जा रही हैं। फाइनल किबला हो गया, फाइनल उम्मत वस्त बन गई, फाइनल फरीज़ा मनसबी दे दिया गया, फाइनल 4 जिम्मेदारियां यहाँ बताई जा रही हैं फाइनल रसूल को भेजने के बाद। वो क्या है? नंबर 1 जो तुम्हें हमारी आयात पढ़कर सुनाता है, सबसे पहले तिलावत आयात होगी, उसके बाद जो तुम्हें पाक करता है। नंबर 2 तज़किया, फिर तालीम किताब की देना, और नंबर 4 की तालीम हिकमत की देना। और तुम्हें इन चीज़ों की तालीम देता है जो तुम नहीं जानते थे। ये सारा कुछ जो 4 पॉइंट्स है ये तुम बिल्कुल नहीं जानते थे। हम भी जब तबलीग करते हैं, ये वो 4 पॉइंट्स है जिनका जिक्र कुरान मजीद में 4 दफ़ा होता है, सूरतुल बकरा में शुरू में, और फिर अब यहाँ पर सूरतुल बकरा में, और सूरतुल आल इमरान में, और सूरतुल जुमा में। ठीक है, इन 4 जगहों पर जिक्र होता है इसका। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सूरतुल जुमा जब हमने पढ़ी थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था ये बात। तो सूरतुल जुमा की जो रिकॉर्डिंग है उसमें इसकी डिटेल्ड तफसीर मौजूद है, ये 4 स्टेप्स की। सिंस ये काम हमने भी करने, तो ये हमें आना चाहिए कि ये करना कैसे है। जिसने नहीं सुना वो प्लीज वहां पे जाके जरूर सुन ले। अगली आयत क्या है? तो तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, मेरी शुक्रगुजारी करते रहना, मेरी नाशुक्री ना करना। फस्कुरूनी अस्कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, ये वो आयत है जो कि हम सबको जुबानी आनी चाहिए। यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है? बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अजीम मुआहिदा बताया जा रहा है जो कि होगा और हमेशा रहेगा। वो क्या? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हें याद करूंगा। और अल्लाह ताला हमें याद कहाँ करेंगे? वो उन महफिलों में जो कि ऊपर फरिश्तों की महफिलें, उसमें अल्लाह ताला हमारा जिक्र करेंगे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरा शुक्र करना और मेरी नाशुक्री मत करना। मुझे यहाँ पर डॉक्टर इसरार अहमद की बात याद आ रही है। वो हमेशा कहते होते हैं कि कायनात के ऊपर तफक्कुर, गौर व फिक्र करने का जो नतीजा निकलता है ना, वो ये 2 नतीजे होते हैं। पूरी कायनात पे गौर व फिक्र करने के बाद 2 नतीजे जरूर निकलने चाहिए, वो है तजक्कुर और तशक्कुर। वही दोनों काम यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है कि अल्लाह का जिक्र हमें याद आता है कायनात को देखकर, और अल्लाह का शुक्र करना हमें याद आता है। इन दोनों चीजों को अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम कभी ना छोड़ना। और अगली आयत की हमने बस तिलावत कर ली थी, इसलिए मैं बता दूं कि ए ईमान वालों, तुम मदद तलब करो सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। मतलब कि अब तुम्हें ये जो जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, इन पर अब अमल करना। उम्मत वस्त बन के इतना इंपॉर्टेंट तुम्हें डेजिग्नेशन दे दिया, अब आसान नहीं होगा, अब तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, मुश्किलात अब आएंगी, तो सब्र से काम लेना, और नमाज को भी कभी मत छोड़ना। नमाज तो साथ साथ चलेगी। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास का इख्तिताम होता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اب کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے, نہیں تو میں کلاس کو بند کر رہی ہوں.